Bismillahirrahmanirrahim. This is Lieutenant Khurram Shahzad. Today I am going to speak on very important topic. But first of all, let me recite a verse from Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil arzi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaitani innahu lakum aduwwum mubin. O men, eat the lawful and good things out of what is in the earth, and do not follow the footsteps of the shaitan. Surely he is your open enemy. So, by this verse, it is very clear that consumption of halal food is an order by the Creator to every human in the world. Therefore, we need to manage everything that we consume that should be halal. First of all, let me give you some introduction of our food sector or food industry. Food industry is the second largest industry in Pakistan, not only in Pakistan, but in the world as well. Above 1,300 large-scale food processing enterprises are present in Pakistan, which gives approximately 40% of total employment. An average consumer spends about 40 to 45% of his income on food. Therefore, food is very important sector. Next slide, please. The food market stakeholders are meat industry, dairy industry, cereal industry, beverage industry, confectionery industry, restaurant and hotel industry, which is also called HoReCa sector, baking industry, sugar industry, fat and oil industry, fruits and vegetable industry. These all sort of industries combinedly work as a food sector. This food sector not only gives us the food, but it is continuously working for improvement in the food quality, presentation, shelf life, taste, and appearance, for which many substances other than regular food are added into the food. These substances which are added to the food for enhancing the taste, flavor, color, appearance, and even its shelf life, and some other attributes as well. These are called food additives. Some food additives are used since ancient times, like salt. Salt is used in pickling. This is an additive and as well as a preservative. And some are very newly manufactured or very newly introduced food additives which are currently used by the food sector and food industry. Today, we will discuss what are the E numbers, what are these food additives, and what are the aspects of their halal and haram, lawful or unlawful categorization. Next slide, please. First of all, I will give you the introduction of E code. So, what is meant by E code? You people normally see that many food have many food items have their labels with their ingredients, but some of the times
their ingredients contain some specific numbers, which are called E numbers. The E numbers are the code for food additives that have been assessed for use within the European Union. Therefore, it is called E code, as European Union has started this using these E numbers first around the globe. They are commonly found on food labels throughout the European Union, not only European Union, but they are currently used by almost every country in the world. And their safety assessment and approval are the responsibility of EFSA, European Food Safety Authority. If they are declared safe, they are declared GRAS, GRAS, generally recognized as safe. Then, only then they are allowed to be used by the food industry in food items. The need of E-code is because there are many names, many local names for many food additives. So it is very difficult to recognize which food additive is called by which name in which area. Therefore, it is need to be a unified code system or unified name system, unique name system. So European Union has started this e-coding setup, which is later adopted by Codex Alimentarius Commission. And now it is implemented worldwide. Some countries use these numbers only, and some countries use these numbers with the prefix E. So that's why they are called E numbers. These E numbers are first agreed for in 1962 for food coloring. Next slide, please. You may say in this slide that E100 to E199 are the codes which are given to food colorings or coloring additives, while E200 to 299 are given to the preservatives. Preservatives were added in E-code family in 1964. Coloring additives are such additives which are used in the food and drinks to help make them look more appealing and attractive and eye-catchy, or sometimes to replace the natural colors that are lost from the ingredients during the processing stages. Different with color retention agents, these additives are used to help preserve the natural color of the food without need to add other artificial coloring sometimes. While preservatives, as their name is showing, they are used to enhance the shelf life. They are used to increase the shelf life of the product, which is one of the main aim of food sciences and technology. Next, in 1970, antioxidants were added in E-code family, and they are given E300 to E399 series. Antioxidants are such substances when fats and oils and vitamins in certain food are present, they combine with the oxygen in the air and they naturally become rancid. They produce very unpleasant smell, they produce very horrible taste, and they go off. These antioxidants are some essential ingredients which help to prevent such rancidity happening. And antioxidants help prevent what's called enzyme browning, which can cause fruits and vegetables to become discolored and to become brown. Antioxidants stop such browning. Although they don't fully prevent enzyme browning, but they delay that process. Therefore, they are very essential food additives. After 1970, in 1974, emulsifiers, stabilizers, thickeners, and gelling agents are also added. They are given the code as you can see in your screens, E500 to 599, then flavor enhancer 600 to 699, antibiotics 700 to 799,
miscellaneous 900 to 999, and some are kept for additional chemicals which may be introduced in the future, E1000 to E1399, and E1400 to 1499 has been dedicated for the starch derivatives. As we discussed, there are some additives which are called emulsifiers. Emulsifiers are also added as additive in food products. These included in the manufacturing of food to ensure when oil and water are mixed together, they stay together, they don't separate. So the main job of emulsifier or such additives is to keep them together, to stay them together, oil and water, when they both present in the same food. While stabilizers are such additives which are added to some products to prevent them from separating out. They can also be called thickeners or gelling agents. They help produce a gel so that the ingredients of the product may get together in a better shape. Next slide, please. Now, coming towards the classification of E-codes in terms of halal and haram. There are certain food products which are halal and certain which are non-halal or not allowed. There are many websites present which are depicting the detailed data regarding all food additives and their E-codes with their Sharia status clarification that either it is halal or haram, and there is another category other than halal and haram which is called mashbu or doubtful. Doubtful is a category where some products need some research, and after research you need to verify what is their source and what is their manufacturing process, so that from their source and their manufacturing process it will be get clear that there is no harmful or haram ingredient in their manufacturing process. If there is no haram source, then they can be declared as halal or otherwise haram. Some food additives are based on their source, they are declared halal. So due to halal declaration, their source can be, it is very easy to judge that their source can be a plant source, while some additives belong to animal source. So it is a general ruling that every plant source is halal and tayyib unless it can cause harm, whereas every animal source is non-halal unless it fulfills certain requirements of being halal. So there are always requirements on animal sources which they need to fulfill to get into the category of the halal. Like in this slide, you are seeing E120. This is as I previously show you that E100 to 199 are color codes. So this is E120 is a color code which is named as cochineal. This is a red color obtained from a female insect. It is, as it is obtained from an insect, insects are haram in Islamic religion. Therefore, this coloring additive is declared as haram. Although this coloring additive is declared as GRAS, G-R-A-S, GRAS, generally recognized as safe by European Union. But in Islamic ruling, in Sharia law, this will be declared as haram. The next is E441, gelatin. That is always derived from the bones and hides of the cattle or pigs. This comes under the category of mashbu. So, mashbu or doubtful, this category needs research. We need to verify from which animal
this gelatin is derived, and that animal is either slaughtered under Islamic rules and regulations, or it may be died without slaughtering. So the rule which applies to the animal, that must apply to the product. If the animal is halal and it is slaughtered by a Muslim slaughterman in the Islamic way of slaughtering, then that gelatin obtained from its bones or hides will be declared as halal, otherwise it will be haram. Same is the case with E542, that is edible bone phosphate. It can also be derived from animals, and it can only be declared halal if the bones from zabiha slaughtered beef is used. Zabiha slaughtered beef or cattle is used. The next is shellac. Shellac is a resin, E904. This is a resin from the lac insect. Lac insect is found on some tree, and they produce that lac. This can also be, as it is an insect product. As it is an insect product, it will be halal if it is not treated with alcohol. Two types of shellac is available. The halal type is not treated with alcohol, but the other type is treated with alcohol. A gummy secretion material. This is lac is a gummy secretion material from the pores of an insect, Coccus lacca, that feed on a palus tree, which is mostly found in South Asia region. This gummy material is called lac. So its processing needs to be verified whether alcohol is used in it or not. Now we are coming towards next slide, that E120, which we have previously discussed. Cochineal insect. They are found as parasites on the aerial parts of the cactus plant. And cochineal dyes have been used since ancient times. Many insects are required to produce 1 kg of the colorant, as in it is clearly mentioned in Islamic rulings in Sharia laws that insect and their products and their parts are not allowed. Therefore, this color is clearly declared as haram. Next slide, please. In upcoming slide, there is a general procedure of making this cochineal extract, this pigment extractation of E120 colorant. There are detailed videos present on YouTube that how these insects are collected, how they are murdered. What I say murdered, they are murdered to collect this color. So this food color is banned and declared haram in Islamic countries. Next slide, please. There are certain products which are made from the skin of a pig. As in Islamic and Sharia ruling and in Holy Quran, pig is clearly declared as haram. So when an animal is declared as haram, no parts of its body can be used in the food. No parts of its body can be used to prepare some additive which subsequently can be used in the food. And not even its trade is allowed. Pig skin is used in beauty and skincare products, face masks, body lotions, and hair conditioners. Its gelatin is used in sweets, chewing gums, gelatin made from the bones and hides of this pig, in energy bars, marshmallows.
Very sorry to interrupt. I'm getting some request to change the language mode. I'm converting it into Urdu, as most of the listeners are from our own nation, Pakistan. Previously, there are international listeners also available. That's why. If there is someone from abroad, uh, any question, if they ask, I will let them answer in English. अभी हम आते हैं पिग के बारे में बात कर रहे थे कि पिग की जो स्किन है, इसकी बोन्स हैं, इसकी हाइड्स हैं, इनसे जो जेलेटिन बनता है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है और हो सकता है इन मुस्लिम कंट्रीज। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जनरली ये समझ लेते हैं कि अगर हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं तो यहाँ पर मौजूद सारी चीजें हलाल ही होंगी, लेकिन कुछ एडिटिव्स, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे मुल्क की बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज बाहर से इंपोर्ट कर रही होती हैं दूसरे ममालिक से। इसलिए उन तमाम इंग्रेडिएंट्स का, उन तमाम एडिटिव्स का क्रिटिकली उनकी तहकीक करना और उनका जायजा लेना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट को हलाल या हराम डिक्लेयर करने से पहले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे मुल्क में फूड के मुतल्लिक मिसकंसेप्शंस भी बहुत हैं, जिसे र्यूमर्स, फैड्स या फैलेसीज कह सकते हैं, और रियलिटीज भी बहुत सारी मौजूद हैं। बहुत सारी रियलिटीज कम इल्मी की वजह से है, ला इल्मी की वजह से, कि अगर आपको पता नहीं है और फिर आप वो प्रोडक्ट यूज कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि इस किस्म की प्रोडक्ट्स हलाल प्रोडक्ट से सस्ती अवेलेबल होती हैं। वो इसलिए कि जिस तरह हमारे मुल्क में पोल्ट्री फार्मिंग बहुत कॉमन है, इस तरीके से अब्रॉड में पिग फार्मिंग बहुत कॉमन है। जब वो पिग फार्मिंग करते हैं तो इतनी एक्सेसिव तादाद में पिग्स वहां पे मौजूद होते हैं कि उनकी जो बाकियात होती हैं, उनकी जो फैट होती है, उनकी जो बोन्स होती हैं, वो उसको भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना चाहती, तो वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो वो उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उससे एडिटिव्स बनाते हैं, वो एडिटिव सेल होते हैं। जैसा कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ दुबई का। दुबई और यूएई में वहां की अपनी स्लॉटर हुई चिकन जो थी वो कॉस्टली अवेलेबल थी, जबकि ब्राजील से चिकन बहुत सस्ती वहां पे आ रही थी। अब ब्राजील इज फार अवे फ्रॉम यूएई, लेकिन होता यह है कि ब्राजील में चिकन फार्मिंग बहुत ज्यादा है और वहां पे मैकेनिकल स्लॉटरिंग है। मैकेनिकल स्लॉटरिंग में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, मुस्लिम स्लॉटर में नहीं होता जो खुद से ज़िबा करे। मशीनी स्लॉटर हो रही हैं। मशीनी स्लॉटर होती हैं तो एक दिन में 2-2, 3-3 लाख, इवन 6-6 लाख तक बर्ड्स स्लॉटर कर दी जाती हैं। और चूंकि उनके पास एक्सेसिव फार्मिंग है तो उनके मुल्क से ज्यादा जो भी चीज होती है वो उसको दूसरे ममालिक में बेचते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं। इसलिए जो खर्चा बर्ड फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग का यूएई और दुबई वगैरह में था, उससे कम खर्चे पर, उससे कम प्राइस पर ब्राजील से वहां पे चिकन इंपोर्ट हो रही थी। यही एक फैक्टर है कि जब हम पाकिस्तानी या मुस्लिम फूड इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो किसी हलाल इंग्रेडिएंट या एडिटिव की तलाश में जाते हैं तो बाज़ औक़ात उसकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि उसी काम करने वाला एडिटिव, वही काम करने वाला एडिटिव नॉन हलाल सोर्स से बहुत सस्ता अवेलेबल हो सकता है, और इसलिए बाज़ औक़ात लाइल्मी में वो यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पिग्स के बारे में यह है कि इनसे पहले इंसुलिन भी बनाई जाती थी, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, लेकिन ये पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं है। इंसुलिन जो एनिमल से बनाई जाती थी वो बीफ से या पोर्क से बनाई जाती थी, और ये डिसकंटिन्यू कर दी गई थी अमेरिका में 1998 में, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ती थी। अभी बायोसिंथेसिस हो रही है इंसुलिन की। 2006 से वर्ल्ड वाइड
एनिमल इंसुलिन, पोर्क इंसुलिन, चाहे बीफ इंसुलिन, वो खत्म कर दी गई, डिसकंटिन्यू कर दी गई उसको, और उसके बाद से बायोसिंथेसिस वाली इंसुलिन यूज हो रही है। उससे पहले जो लोग डायबिटिक थे और इंसुलिन यूज कर रहे थे, दे मस्ट हैव दिस कंसर्न, उनको ये तहकीक करना लाजिम था कि क्या वो हलाल सर्टिफाइड इंसुलिन यूज कर रहे हैं या फिर वो इंसुलिन किसी हराम सोर्स से आई हुई है, जिसका आजकल बहुत आसान हल हो गया है क्योंकि वो बायोसिंथेसिस में आ चुकी है, इसलिए वो हलाल ही डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ एडिटिव्स हैं मेन जो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक लिस्ट पूरी की पूरी अवेलेबल है, बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां से आप इनको कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर में भी आपको ये बताता हूं कि ग्लोबल हलाल सर्विसेज की अपनी वेबसाइट, GHS की अपनी वेबसाइट पे भी हम जल्द ही ये लिस्ट बहुत डिटेल में, हमारे रिसर्च ऑफिसर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा काम मुकम्मल होता है हम अपनी वेबसाइट पर भी तमाम ई कोड्स की एक्टिव लिस्ट जो है वो अपडेट करेंगे, ताकि आप उनका शरिया स्टेटस जान सकें कि क्या ये ई नंबर जो है वो हलाल में आता है या हराम में आता है। एक जनरल मिसकंसेप्शन जो है लोगों में वो ये है कि अगर ई नंबर लिखा गया तो वो हराम हो जाएगा। तो इसके लिए ये सबसे पहले जरूरी था कि ई नंबर्स को एक्सप्लेन किया जाए कि इसकी जरूरत क्यों थी। जरूरत इसी वजह से थी कि एक ही इंग्रेडिएंट के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम होते थे, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड में भी मुश्किल आती थी, आइडेंटिफिकेशन में भी मुश्किल आती थी। इसलिए साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम इनको नंबर्स दे देते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होंगे। अब हम बात करते हैं मेन एडिटिव्स की जिनके बारे में हमें ख्याल रखना है। जैसे कि ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरीन, E422 इसको नंबर दिया गया है। अगर ये नॉन हलाल मीट सोर्स से आई है या पोक से आई है या फिर नॉन जबीहा बीफ से आई है, तो फिर हम इसको हराम डिक्लेयर करेंगे। सो ये मशबू इंग्रेडिएंट में आता है E422, मशबू इंग्रेडिएंट्स में। तो मशबू जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो डाउटफुल हैं और जिनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। प्लांट फैट्स भी यूज होती हैं ये ग्लाइसरोल बनाने के लिए। ग्लाइसरोल एक्चुअली एक शुगरी अल्कोहल है, लेकिन तमाम अल्कोहल नापाक नहीं होती। जैसे तैयब और पाक दो फैक्टर्स हैं हलाल के साथ जो यूज होते हैं, यानी मतलब हलाल अन तैयबन, हलाल भी हो और पाक भी हो। सो जैसे कि हम परफ्यूम्स में देखते हैं कि अल्कोहल यूज हो रही होती हैं, तो वो एक्सटर्नल यूज के लिए जायज हैं। इस्लाम में हलाल का जो कंसेप्ट है उसमें कंजम्पशन एक अलग फैक्टर है जिसपे बहुत सारी शराइत हैं, और खारजी इस्तेमाल यानी एक्सटर्नल यूज एक अलग फैक्टर है जिसपे शराइत जरा कम है। इमल्सीफायर्स में E470 से E483 ये तमाम भी मशबू कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह E542 एडिबल बोन फॉस्फेट जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर ये पोक या नॉन हलाल मीट सोर्स से आया है और इवन इसकी प्रोसेसिंग में अगर अल्कोहल यूज हुई है तो फिर ये नॉन हलाल डिक्लेयर्ड होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंजurious इंग्रेडिएंट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि खतरनाक हो सकते हैं, जो कि किसी दौर में ग्रास थे, ग्रास यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, लेकिन आजकल ये जो साइंटिफिक रिसर्च हुई कंटिन्यूसली इनके ऊपर, उसके बाद ये चीज सामने आई कि इनमें से बहुत सारे जो हैं वो सेफ नहीं है। जैसे सबसे पहले BHA और BHT लिखा गया है। ये केमिकल्स जो हैं ये हेल्थ हैजर्ड भी हैं और एनवायरमेंटल हैजर्ड भी हैं। ये एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करते हैं स्किन पे, और इनको कार्सिनोजेनिक भी डिक्लेयर किया गया। कार्सिनोजेनिक डिक्लेरेशन जब इनकी हुई उसके बाद इनको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान और फिर पूरे यूरोपियन यूनियन में बैन कर दिया गया। ये चिप्स में और सॉसेजेस में यूज होते थे। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA है और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BHT है। तो ये एक वैक्स टाइप सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे एक्ट करते हैं और फूड को खराब नहीं होने देते। ऐसी फूड जिसमें फैट मौजूद है उसको ये खराब नहीं होने देते, लेकिन इसका स्किन रिएक्शन भी था और ये कार्सिनोजेनिक भी थे, जिसकी वजह से इनको ग्रास कैटेगरी से, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ कैटेगरी से निकाल दिया गया।
इसके बाद है जी सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट ये दोनों जो केमिकल्स हैं ये मीट में मौजूद होते हैं। ये मीट का कलर जो है उसको भी प्रिजर्व करते हैं, मीट को प्रिजर्व करते हैं। ये भी जो है वो अनसेफ डिक्लेयर हुए बाद में, और इनका इस्तेमाल जो है वो मना कर दिया गया मीट इंडस्ट्री के लिए। फिर प्रोपाइल गैलेट है जी इसके बाद नेक्स्ट। प्रोपाइल गैलेट जो है ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट टाइप प्रिजर्वेटिव है जो फैट्स को प्रिजर्व करता है, लेकिन ये भी कार्सिनोजेनिक है। ये भी सब ये पहले जापान में बैन हुआ। ये इन्फेंट फूड्स जो है, जो बच्चों का जो दूध होता है इन्फेंट फूड फार्मूला, उसमें ये मोस्टली यूज होता था पहले, लेकिन इसे बैन कर दिया गया। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है जी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी। एमएसजी जापान से स्टार्ट हुआ था जी। चाइना में भी इसके शवाहिद हैं स्टार्ट होने के, लेकिन जापान का एक ब्रांड था अजीनोमोटो के नाम से। वो ब्रांडिंग ही इसकी इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि इसको एमएसटी नहीं कहा जाता था, इसको अजीनोमोटो ही कहा जाता था। और इवन पाकिस्तान में भी जब टीवी चैनल स्टार्ट हुए थे और बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स पे ये जो कुकिंग शोज आते थे, तो बहुत सारे शेफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ रेसिपीज में इसका इस्तेमाल बताते थे कि इतना क्वांटिटी में ये डालें। ये एक फ्लेवर एनहांसर है। फ्लेवर एनहांसर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे टेस्ट बड्स पे बहुत कम टेस्ट होता है उसको भी बढ़ाकर उभार कर जो है वो बताते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, यानी न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है ताकि दिमाग में स्टिमुलेशन हो और ब्रेन को ये महसूस हो नर्व सेल्स के थ्रू कि एक्चुअली टेस्ट जो है वो बहुत बढ़कर आ रहा है। ये जो स्टिमुलेशन है नर्व सेल्स की, ये इन द लॉन्गर रन अच्छी नहीं है। इस वजह से इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई। कभी इसे बैन किया जाता था, फिर इसे अलाउ किया जाता था, फिर इसे बैन किया जाता था। अभी करते करते पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पंजाब फूड अथॉरिटी ने, इवन सिंध फूड अथॉरिटी ने, इन सब ने ये डिसीजन लिया, और इवन अब्रॉड में भी बहुत सारी कंट्रीज में भी, कि इसकी वजह से हेडेक्स होते हैं, सर दर्द होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, और इन द लॉन्गर रन ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ये उसमें फेक मैसेजेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बाद में फेक मैसेजेस फॉर द फ्लेवर एनहांसमेंट, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं। इस वजह से इसको, क्योंकि ये लॉन्गर रन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, इसको भी बैन किया गया। नेक्स्ट इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है ये स्वीटनर है। स्वीटनर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो तब यूज किए जाते हैं जब जो मेन स्वीटनिंग एजेंट है जैसे कि शुगर, वो डायबिटीज या डायबिटिक पेशेंट्स के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा हाई कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका स्वीटनिंग इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे एस्पार्टेम जो है ये ऑलमोस्ट 200 टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल टेबल शुगर। लेकिन अगर हम इसकी कैलोरिक आउटपुट की बात करें तो ये भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज देती है, ऐसे ही जैसे कि नॉर्मल जो केन शुगर है, गन्ने की शुगर है, टेबल शुगर है, वो भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज देती है, लेकिन ये यूज बहुत कम है। एस्पार्टेम का जो एफडीए ने, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है यूएसए की, उसने जो इसका एडमिसिबल डेली इनटेक का डोज रखा है दैट इज 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। इतने कम उन्होंने इसकी क्वांटिटी रखी है, और इतने पे ही ये अपनी जो स्वीटनेस है वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये 200 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है नॉर्मल शुगर से, ये लो कैलोरी स्वीटर है। लेकिन इसके भी जो है वो साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। आजकल बहुत सी जो स्वीट्स हैं, जो डाइट ड्रिंक्स हैं, डाइट जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, उनमें एस्पार्टेम एज ए स्वीटिंग एजेंट यूज हो रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स जो ऑब्जर्व हुए हैं वो हेडेक, डिजीनेस, डिप्रेशन, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इस किस्म की चीजों की वजह से जो इस्लाम के मेन रूल है शरिया का कि जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके लिए सेफ होनी चाहिए, वो आपको किसी सूरत नुकसान ना पहुंचा रही हो, ये भी एक रूल है जिसकी वजह से ये हलाल और हराम डिक्लेरेशन आती है। लेकिन मेन कंसर्न जो है वो सोर्स का देखा जाता है। ऑल्दो दिस इज अ प्लांट सोर्स, हम इसे हराम डिक्लेयर नहीं कर रहे होते, लेकिन ये डेंजरस जरूर है, कंजम्पशन के लिए ये डेंजरस है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो कि फिल्थी थिंग्स, जिनसे कराहत आती है, उनसे ड्राइव किए जाते हैं, जैसे कि यूरिया। ये यूरिन और अदर बॉडी एक्सक्रीट से निकाला जा रहा है और कई जगहों पे ये हेयर कलर्स में यूज हो रहा है, शैम्पू में यूज हो रहा है। तो अब ये कराहत वाली चीज जो है कंज्यूम तो किसी सूरत नहीं की जा सकती। और दूसरी तरफ इनका एक्सटर्नल यूज है। एक्सटर्नल यूज के बारे में जो उसका पाकी और नापाकी का जो होता है कि तैयब है या नहीं, उसके लिए भी हमें सोर्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप नंबर 2 में देख रहे हैं ब्लड। ब्लड जो है कंजम्पशन के लिए भी हराम डिक्लेयर्ड है, और अगर लग जाए कपड़ों पर या जिस्म पर तो तहारत जो है वो नहीं रहती, नजस हो जाता है। नजस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप इबादत नहीं कर सकते। सो ताहिर होना जरूरी है उस चीज का जो आपकी जिस्म के साथ, आपके बालों के साथ, आप चाहे हेयर डाई यूज कर रहे हैं, चाहे आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, चाहे आप क्रीम यूज कर रहे हैं, जो आपके जिस्म के साथ टच हो रही है, उसका एटलीस्ट ताहिर होना, पाक होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि पिग ब्लड का भी यहाँ पे अभी है कि ये बहुत जगहों पे चिकन फीड में भी यूज किया जाता है, फिश फीड में यूज किया जाता है। इवन चिकन की हम यहाँ पे अपनी लोकल मार्केट में भी देख रहे होते हैं कि उसकी अंतड़ियां वगैरह जो हैं उनको भी बावकात ड्राई करके, प्रोसेस करके फर्दर चिकन फीड में भी यूज कर लिया जाता है। तो ये किसी सूरत जो है वो जायज नहीं है, अलाउड नहीं है, हलाल कैटेगरी में नहीं आ सकता। नेक्स्ट आपको कुछ बताना चाहेंगे हलाल कोड, ऐसे जो डिक्लेयर्ड ई हलाल कोड है जिनका प्लांट सोर्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो डिक्लेयर्ड हलाल कोड हैं जिनके सोर्स प्लांट सोर्स हैं, जैसा कि E100 जो है ये नंबर दिया गया था टर्मेरिक को। टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी बहुत से मेडिसिनल बेनिफिट रखती है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, ये एंटीसेप्टिक भी है, लेकिन एज ए कलरिंग एजेंट भी यूज हो रही है। सो E100 अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि उसमें ये कलर डाला गया है तो आप उसे बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ऑडिटर हैं और आप ये देख रहे हैं कि E100 उनके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है तो आप उसे हलाल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह टाट्राजाइन भी एक कलरिंग एजेंट है, E102 इसका नंबर है, लेकिन इसके एलर्जिक रिएक्शंस आ सकते हैं। यहां से मैं आपको लेके जाना चाहता हूं एक डेफिनेशन की तरफ, दैट इज फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसी फूड जो किसी भी सूरत फूड बॉर्न इलनेस क्रिएट ना करे वो सेफ फूड कहलाएगी। और इस सेफ फूड को मेंटेन कर रखने का जो प्रोसेस है सारा, वो फूड सेफ्टी कहलाएगा। बाय डेफिनेशन तो ये चीजें आज भी ऐसी हैं, लेकिन अभी एडवांसमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिसमें ये पता लग रहा है कि कोई फूड जो आज कोई हैजर्ड क्रिएट नहीं कर रही, वो मे बी इन द लॉन्गर रन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो क्या उन्हें भी सेफ फूड कैटेगरी में लिखा जाएगा या उन्हें अनसेफ कैटेगरी में लिखा जाएगा? जैसा कि अलर्जेंस, ये तमाम लोगों पर एक तरह का एक्ट नहीं करते, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में मे बी ये एक्ट ना कर रहे हों और उससे ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए तो फिर इनका रिएक्शन जो है वो शुरू होता है। बहुत सी फूड एडिटिव्स ऐसे हैं जो आप थोड़े टाइम के लिए कंज्यूम करें तो आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट ना आए, और अगर आप लॉन्गर रन के लिए कंज्यूम करें तो फिर ऐसी चीजें आए जैसा कि सेंसिटिव स्किन हो जाना, जैसा कि नर्वस सिस्टम का रिएक्ट करना, जैसा कि कार्सिनोजेनिक रिएक्शन आना, अल्सर हो जाना, इस किस्म की रिएक्शन। सो फूड सेफ्टी की डेफिनेशन को और इसके पूरे स्कोप को अभी वर्ल्ड वाइड रिवाइज होने की जरूरत भी है, और बहुत सारे लोग इसको रिवाइज कर भी रहे हैं और इसको अपडेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जितने भी कोड्स अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये वो हैं जो डिक्लेयर्ड हलाल कोड्स हैं, और ये तमाम के तमाम फूड सोर्सेज से
या प्लांट सोर्सेज से एक्सट्रैक्टेड केमिकल हैं जो कि नेचुरली कुदरत में नेचुरली मौजूद होते हैं। अब इनके कोडिंग से आपको ये अंदाजा हो जाएगा, जैसा कि 200 की सीरीज का कोड चल रहा है, तो 200 से 299 की जो कोड सीरीज है वो प्रिजर्वेटिव्स की है। तो ये तमाम के तमाम प्रिजर्वेटिव्स हैं 213 तक। एंड पे 901 और 902 हैं, ये ग्लेजिंग एजेंट्स हैं जो कि उसकी अपीयरेंस को बेहतर बनाते हैं, प्रोडक्ट की अपीयरेंस को, और ये भी हलाल डिक्लेयर्ड हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरीके से कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है। ये भी वो सब हैं जो कि हलाल डिक्लेयर्ड हैं प्लांट सोर्स से। मैं एक दफा फिर आपको ये याद दिलाता चलूं कि किसी भी ई कोड को का हलाल या हराम डिक्लेयर होना एक रिसर्च का मोहताज है। अगर तो वो क्लियरली प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किए गए हैं तो वो हलाल हैं, अगर वो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किए गए हैं या उनकी प्रोसेसिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स, अल्कोहल्स, कुछ ऐसी चीजें यूज हुई हैं जो कि हलाल ना हो, तो वो मशबू कैटेगरी यानी डाउटफुल कैटेगरी में आते हैं, जिसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ती है और उसका सोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हम उसे हलाल या हराम डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लाना चाहता हूं कि ये इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। हम ई कोड्स को क्यों देखें? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ई कोड्स को क्यों देखें, हम लेबल को क्यों पढ़ें? लेबलिंग लॉज जो हैं ये बेसिकली कंज्यूमर राइट हैं। लेबलिंग के जितने भी लॉज हैं ये बेसिकली कंज्यूमर का राइट है। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या क्या केमिकल्स जो हैं वो एडअप किए गए हैं, डाले गए हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखना तमाम इंडस्ट्रीज पे, फैक्ट्रीज पे मैंडेटरी है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो फॉर मुस्लिम इसकी इंपॉर्टेंस किस लिहाज से हो सकती है कि ये हमें हेल्प करती है रिकग्नाइज करने के लिए, ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि हमें हेल्प करती है रिकग्नाइज करने के लिए कि कौन सी फूड प्रोडक्ट जो है वो हलाल है और कौन सी नॉन हलाल है। तो आप इन ई कोड्स और इन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को पढ़ के आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी जो आप परचेज करने जा रहे हैं किसी भी सुपरमार्केट से, किसी भी शॉप से, तो वो प्रोडक्ट जो है वो हलाल है या नहीं। एक ये आपकी डेली लाइफ में इसका यूजेज मौजूद है। फिर कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं स्पेसिफिकली, या उनको मीट पसंद नहीं है या मीट से कोई एलर्जी है या उनके अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं जिसकी वजह से वो प्योर जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट अडॉप्ट करते हैं। तो उनके लिए ई नंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि वो ई नंबर्स के थ्रू वो जान सकते हैं कि इस फूड में जो एडिटिव्स यूज किए गए हैं क्या उनमें कोई एनिमल ओरिजिन का एडिटिव भी मौजूद है। अगर कोई भी एनिमल ओरिजिन का एडिटिव उसमें डाला गया है तो फिर वेजिटेरियन अफराद के लिए वो फूड आइटम सूटेबल नहीं है। कुछ लोग एलर्जिक या एलर्जन से सेंसिटिव होते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी टाट्राजाइन की, जो कि एक कलरिंग एजेंट है। तो अगर कोई फर्द किसी भी एजेंट से, किसी भी एडिटिव से एलर्जिक है और उसको इस बात का इल्म है, तो फिर उसको ये लेबल पढ़ना लाजिम है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा कलर या कौन सा एडिटिव जो उसमें डाला गया है वो एलर्जन तो नहीं है या उसको वो एलर्जी कॉज तो नहीं करेगा। जैसा कि टाटाजाइन में है कि ये एस्थमा जिनको होता है, दमा के पेशेंट्स जो होते हैं, उनके लिए ये एलर्जी क्रिएट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा हलाल और हराम डिक्लेरेशन की। ये बहुत नाजुक मसला है, बहुत सीरियस मसला है। कोई भी फर्द, कोई भी अदारा, कोई भी सर्टिफिकेशन बॉडी जो हलाल या हराम डिक्लेयर करती है वो अपने सर हजारों, लाखों, करोड़ों इंसानों का गुनाह नहीं लेगी।
उस इदारे में मौजूद तमाम ऑडिटर्स बहुत दयानतदारी से, बहुत ईमानदारी से और बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए ये काम कर रहे होते हैं। इसलिए जितनी भी प्रोडक्ट्स किसी एक्रेडिटेड सीबी से हलाल सर्टिफाइड हैं, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम खुद ही रिसर्च करने पे लग जाएंगे हर चीज पे, और हम हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज का जो रोल है उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी लाइफ जो है वो अजीरन हो जाएगी, मैसअप हो जाएगी। इसीलिए हमारी सहूलत के लिए ये सर्टिफिकेशन बॉडीज जो हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, शरिया के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, फूड एक्सपर्ट्स हैं, वो ये काम सर अंजाम देते हैं, प्रॉपर ऑडिट्स करते हैं, रिवाइज्ड ऑडिट करते हैं, सरप्राइज ऑडिट्स करते हैं, तो जाके ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो ये शो करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हलाल है और हराम है और कंजम्पशन के काबिल है या नहीं। सेम इज द केस, जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, ये उसकी अपनी भी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर इंग्रेडिएंट को जो उसमें डाल रही है वो उसको शो करे, वो उसको अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखे, और अगर उसे मालूम है कि इसका सोर्स हलाल सोर्स नहीं है तो वो अपने प्रोडक्ट को हलाल डिक्लेयर नहीं कर सकती। बहुत सारी जगहों पे सेल्फ डिक्लेयर हलाल भी चल रहा होता है, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो किसी एक्रेडिटेड सेबी का हलाल सर्टिफाइड है, आप उसी तरफ जाइएगा। नेक्स्ट, एजुकेशन या अवेयरनेस। जो सेशन आज आप अटेंड कर रहे हैं ये एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए है। ये अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, प्लीज स्प्रेड दिस अवेयरनेस एज मच पॉसिबल एज यू कैन, क्योंकि जो लोग जानते हैं ना जानने वाले कभी भी जानने वालों के बराबर नहीं हो सकते। और हमें हमारा रिलीजन ये ऑर्डर देता है कि हम नॉलेज गेन करें, जानें, रिसर्च करें, तहकीक करें। नेक्स्ट, ये हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि हमने हलाल फूड कंज्यूम करनी है। हलाल फूड अगर हमने कंज्यूम करनी है तो हमें तमाम एडिटिव्स और इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहे हैं उनका शरिया स्टेटस पता होना चाहिए, इसलिए हम पे ये रिसर्च लाजम है। मैं आपकी आसानी के लिए एक बात और बता दूं, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था E100 से शुरू हुए हैं और ये 1400-1500 तक नंबर जा रहे हैं। इनमें टोटल 70 से 80 ऐसे आइटम्स हैं जो कि डाउटफुल या मशकूक कैटेगरी में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। सो इन 70-80 आइटम्स पे आउट ऑफ मोर देन 1000 वी कैन कंडक्ट द रिसर्च। और लास्ट इसमें जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हलाल अल्टरनेटिव। अगर किसी प्रोडक्ट में हराम फूड इंग्रेडिएंट डाल के बहुत अच्छा रिजल्ट उसको ऑब्टेन हो रहा है, तो वी एज ए फूड साइंटिस्ट, वी एज ए फूड प्रोफेशनल, वी मस्ट हैव टू वर्क ऑन दिस टू प्रोड्यूस हलाल अल्टरनेटिव ऑफ सच हराम फूड एडिटिव्स। हमें ऐसे अल्टरनेटिव्स सर्च करने हैं, ढूंढने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, ताकि वो तमाम जो हराम फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लिए हम एक ऐसी इंडस्ट्री को ऐसी प्रोडक्ट्स दे सकें जो कि हलाल है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, कि वो फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल करें। फीडबैक फॉर्म हमारे जो टीम है उसने यहाँ पे शेयर किया है, आप उस लिंक पे जा सकते हैं, फीडबैक फॉर्म ओपन कर सकते हैं, अपने को फर्दर क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसा कि हमना तनवीर का क्वेश्चन है, सर देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ पाकिस्तान विद हलाल लेबल जेलेटिन, सो हाउ टू आइडेंटिफाई जेन्युइन हलाल जेलेटिन। देखिए, मैंने इसका पहले भी बताया कि हमें अपनी जिंदगी अजीरन नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो जो हलाल लेबल है क्या वो किसी एक्रेडिटेड सीबी से सर्टिफाइड हलाल है, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जहां पे डाउट हो वहां पे इज्तनाब जो है वो जरा बेहतर होता है। एक और सवाल है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट देयर इज नॉट द यूज ऑफ पिग इन आवर हलाल प्रोडक्ट्स। देखिए, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे पिग फार्मिंग ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है,
ये आज के सेशन का पर्पस ही ये है कि आपको ये बताया जा सके कि सेल्फ क्लेम हलाल और सर्टिफाइड हलाल में फर्क है। जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें सर्टिफिकेशन बॉडी के जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी जगह पर वो ये काम करते हैं कि वो रिसर्च करते हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं और तब जाकर डिक्लेयर करते हैं कि क्या ये हलाल है या नहीं। माजिद काजी का एक क्वेश्चन है, सम इंसेक्ट्स आर हलाल इन इस्लाम लाइक लोकस्ट। यस, लोकस्ट या जराद जो है ये इस्लाम में हलाल बाय नेम इसको डिक्लेयर किया गया है, और इसके अगर डेरिवेटिव्स आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो भी हलाल होंगे अगर उनकी एक्सट्रैक्शन में आपने कोई भी हराम इंग्रेडिएंट जैसे कि अल्कोहल वगैरह यूज नहीं की तो। शीजा रशीद, व्हाट अल्टरनेटिव कैन वी यूज इंस्टेड ऑफ जेलेटिन स्पंज इन सर्जरीज। देखिए यही तो मैंने अभी बात की है कि तमाम जो रिसर्चर्स हैं, तमाम जो फूड साइंटिस्ट हैं, उनको इस पर काम करने की जरूरत है और दूसरे अल्टरनेटिव जो हलाल अल्टरनेटिव हैं वो मुतारफ करवाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा अकरम का, हाउ कैन वी नो अबाउट द मशबू इंग्रेडिएंट, इधर दे आर स्लॉटर्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज और नॉट। जी ये इस पे मैंने बात की कि जितने भी मशबू और डाउटफुल इंग्रेडिएंट हैं, अगर आप वो लेबल पे वो देख रहे हैं कि वो ई कोड्स वो वाले हैं जो डाउटफुल या मशबू कैटेगरी के हैं, तो तब आप हलाल सर्टिफिकेशन की तरफ भी जाएं। आप देखें कि हलाल का लोगो मौजूद है किसी सर्टिफाइड बॉडी से। अगर हलाल का लोगो मौजूद है तो फिर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी ने आपका ये काम आसान कर दिया। व्हाट इज सेफ इनटेक ऑफ एस्पार्टेम, डाइटिशियन सिद्रा। डाइटिशियन सिद्रा मेरा इसमें एफडीए को मैं रेफर करूंगा। एफडीए ने जो सेफ इनटेक ऑफ एस्पार्टेम की लिमिट रखी हुई है वो है 50 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो आपके पास अगर कोई, आप चूंकि डाइटिशियन है, आपके पास अगर कोई क्लाइंट या पेशेंट इस तरह है तो आप जो एस्पार्टेम यूज करना चाहते हैं और वो डायबिटिक हैं, तो आपको सबसे पहले उनका बॉडी वेट देखना है और उस बॉडी वेट के हिसाब से आप 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से उनको, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम इसके भी अंदर रहें, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। एस्पार्टेम कितनी अमाउंट हार्मफुल है, किरण तनवीर। सेम क्वेश्चन जी, मैं इसका आंसर दे चुका हूं। उसामा फारूक, सर हम फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को ही क्यों फॉलो करते हैं, कि हमारे पास इतना क्राइटेरिया नहीं है जिसे अप्लाई किया जा सके। देखें उसामा भाई, आपका सवाल बड़ा मजे का है और ये डिमांड करता है कि हमें आप जैसे टैलेंट की जरूरत है जो आए और रिसर्च करें, और रिसर्च करके ये जो फिगर्स हमें एफडीए ने दी हैं ये आप खुद डेवलप करें यहाँ पे। लेकिन होता यह है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी रिसर्च करे, वो रिसर्च शेयर की जाती है ताकि मासेस का फायदा हो सके पब्लिकली। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि सिर्फ हम एफडीए को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने कोई रिसर्च पहले कर ली है तो उसे फॉलो करने में कोई हार्म भी नहीं है अगर वो हमारे लिए सूटेबल है तो। कामरान साहब का सवाल है कि जी अद्वियात में कैसे पता चलेगा कि हराम इंग्रेडिएंट है। देखिए जी, अभी तो हम जो बात कर रहे हैं जीएचएस के प्लेटफॉर्म से, दैट इज फॉर द फूड। ई जो कोड्स हैं फूड एडिटिव्स के लिए, उसमें बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो हलाल और हराम की डिक्लेरेशन है ना, ये इसके लिए पीएसक्यूसीए ने, जो पाकिस्तान की नेशनल स्टैंडिंग बॉडी है, इसने काम शुरू किया था। पाकिस्तान की नेशनल स्टैंडिंग बॉडी पाकिस्तान स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ये 1996 में फूड एंड एग्री डिवीजन के अंडर इसमें एक हलाल डिपार्टमेंट का क्याम हुआ और वो हलाल डिपार्टमेंट ने 1996 में काम किया। लेकिन तब ये काम सिर्फ फूड तक महदूद था। बाद में ये हुआ कि ये एक्सपेंड कर गया, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा स्कोप है इसका। ये कॉस्मेटिक्स भी हलाल हराम हो सकते हैं, जो मेडिसिन है, फार्मेसी इंडस्ट्री, उसमें भी ये चीज हो सकती है। फिर 2016 में 2016 में पीएसक्यूसीए में एक हलाल का डिवीजन बन गया, एक सेपरेट डिवीजन जो कि ये काम कर रहा है। और उसमें उस डिवीजन का काम स्टैंडर्ड बनाना है, और वो स्टैंडर्ड नॉट ओनली फूड, वो मेडिसिन के, कॉस्मेटिक्स के, और वो बहुत से और स्टैंडर्ड भी हलाल के अम्ब्रेला के अंदर बना रहा है। और उन स्टैंडर्ड्स को जो भी इंडस्ट्रीज कंप्लाई करेंगी वो हलाल सर्टिफाइड होंगी और उनकी चीजें भी हलाल सर्टिफाइड होंगी।
मेरे ख्याल में आज की ट्रेनिंग जो है वो कंक्लूड हो गई है। मैं लास्ट स्लाइड की तरफ जाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन है, हमारा टाइम चूंकि ओवर हो चुका है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको इसके लेटर ऑन जो है वो आंसर्स हमारी टीम की तरफ से, और इवन मैं खुद भी इसके आंसर्स करूंगा। मैं अभी हैंड ओवर करना चाहता हूं हमारी होस्ट मिस फातिमा की तरफ, ताकि वो सेशन को कंक्लूड कर दें। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कीजिएगा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। सर खुर्रम, आपने बहुत अच्छी इस टॉपिक पे बहुत अच्छा कंक्लूड किया है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। होपफुल कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो है काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। मोरओवर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के कमेंट्स के हवाले से मैं ये जो सवालात आ रहे थे कि ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आप लोग को ट्रेनिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी दिया जाएगा, और अगर कोई ईमेल पे मांगना चाह रहा है तो उसे ईमेल भी दे दी जाएगी। और अगर कोई व्हाट्सएप पे नहीं है तो हमारे ग्लोबल हलाल सर्विस के मैसेंजर पे जाके वो अपना अपने मोबाइल नंबर्स हमें सेंड कर दीजिए। हमारे जो एडमिन्स हैं वो जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो कर देंगे ऐड। बाकी जो है वो जो फीडबैक जो आपको दिया गया है, फीडबैक में आप लोग जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस ट्रेनिंग के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से। और अगर कोई सजेशंस हैं आप लोगों की, मोर ओवर किसी टॉपिक के ऊपर, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए अवेयरनेस सेशन जो 1 आवर का हो, तो आप हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अटेंडेंस लिंक के हवाले से मैं ये कहूँगी, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स का अटेंडेंस लिंक का भी आ रहा था, तो वो अटेंडेंस लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है कमेंट बॉक्स के अंदर ही, तो अटेंडेंस लिंक भी आप लोग को मिल गया होगा। तो बाद में मैं अगेन थैंक्स करूँगी मिस्टर लेफ्टिनेंट खुर्रम शहजाद का फॉर टेकिंग द मिस टाइम फातिमा, ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। मिस फातिमा, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ। जी जी, श्योर श्योर श्योर। हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं शुरू में नहीं कर सका। मेरे पास एक क्वेश्चन आया बलाल हुसैन फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से, कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए ठीक है, अगर हम कहीं अब्रॉड का मीट यूज कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क में एक स्टैंडर्ड एक्रीडेशन बॉडी होती है। जैसे पाकिस्तान में पिनैक है, पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। उसकी वेबसाइट पे आपको जितनी भी सर्टिफाइड, उस पिनैक से सर्टिफाइड, पिनैक से एक्रीडेटेड जो बॉडीज हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ग्लोबल हलाल सर्विसेज, जिसके तवज्जो से अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये भी शामिल है, ये भी पिनैक से एक्रीडेटेड है। तो आप वहां से सबसे पहले एक्रीडेटेड बॉडीज की लिस्ट देखें, और फिर उन बॉडीज की सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर आप यूज करें। ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं एक दफा दोबारा आया। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर लेफ्टिनेंट खुर्रम शहजाद। एंड मोरओवर इसमें मैं एक और एडिट करूँगी कि जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉरनर पार्टिसिपेंट्स, आई अपोलोजाइज फ्रॉम दैम फॉर देयर साइड्स के just because of that ke many of participants from the national side requesting for the mode of change of language